श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। বন্ধুগণ সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে যান, সবাই বসে যান, সবাই বসে যান। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মহারাজ যোগী আদিত্যনাথ জি। যোগী জিকে শল দিয়ে সম্বর্ধনা দেবেন আমাদের চাপদানি বিধানসভার প্রার্থী মাননীয় দিলীপ সিং মহাশয়। আমাদের যোগী জিকে মালা দিয়ে স্বাগতম জানাবেন, মালা দিয়ে স্বাগতম জানাবেন মন্ডল 4 মন্ডল সভাপতিগণ এবং মঞ্চে উপস্থিত বরিষ্ঠ কার্যকর্তাগণ। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করব। এরপরে আমাদের বক্তা মাননীয় এই চাপদানি বিধানসভার প্রার্থী দিলীপ সিং মহাশয়, আমি দিলীপ দাকে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব। মাননীয় দিলীপ দা। তার আগে আমি সারাপুরি মন্ডলের সভাপতি বলে মন্তব্য রাখছি যোগী সাহেবকে বলতে দেওয়ার জন্য, যোগী সাহেব বলতে দেওয়ার জন্য। এরপরে বক্তব্য রাখবেন আমাদের চাপদানি বিধানসভার দিলীপ সিং মহাশয়। অভিনন্দন করুন, হাততালি বাজিয়ে অভিনন্দন করুন। वाह, क्या बात है। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार। मंचे उपस्थित আজকে আমাদের প্রমুখ বক্তা, যাকে দেখার জন্য হাজার হাজার সংখ্যায় আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। হাজার হাজার লোক আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। उत्तर प्रदेश सीएम महाराजा माननीय श्री योगी नाथ आदित्य सारा ভারতবর্ষের গর্ব বলে যাকে মনে করেন আপনারা, উনি হচ্ছেন আমাদের উত্তর প্রদেশের সিএম মাননীয় যোগী প্রসাদ আদিত্যনাথ। আমরা বুঝতে পারছি আপনাদের জোশ আমাদের সিএমকে দেখার পর যেরকম এসছে উত্তর প্রদেশ সিএম, আমার পর উনি বক্তৃতা রাখবেন আর ভারতীয় জনতা পার্টিকে পশ্চিমবাংলায় জয়যুক্ত করার জন্য, চাপদানি বিধানসভাকে দিলীপ সিংকে জয়যুক্ত করার জন্য উনি আজকে আমার মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা পশ্চিমবাংলায় চাপদানি বিধানসভা থেকে অনেক অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সিএম সাহেব।
0.1% আমার একটু চাপ ছিল, সেই চাপটা আজকে আমার ক্লিয়ার হয়ে গেছে মানে আমি আদিত্যনাথ যোগীজি আসার পর। আমরা সৌভাগ্য আমাদের চাপদানি বিধানসভার মধ্যে আমরা ওনাকে পেয়েছি। আমি শুরু থেকেই বলছিলাম আর আমার কোন সেলিব্রিটি বা নেতা আসুক বা না আসুক, কিন্তু আমাকে উত্তরপ্রদেশ সিএম যোগীনাথ আদিত্যজি আমার লাগবেই লাগবে। এটা আমার স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন আজকে আমার পূরণ হলো। বন্ধুগণ, এত রোদ্দুরের মধ্যে কন্টিনিউ আপনারা খাটছেন, প্রায় 20 ঘন্টা আমার কার্যকর্তারা কাজ করছেন, তার মধ্যে এত বিশাল সংখ্যায় আজকে আপনারা জমায়েত হয়েছেন। আপনাদের কাছে বারবার আমার নমস্কার প্রণাম হৃদয় থেকে জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা, নমস্কার। এই মাঠে কালকে ভাইপো মিটিং করে গেছেন, মাত্র 450 লোক ছিল, মাত্র শুধু 450 লোক নিয়ে ভাইপো মিটিং করে গেছে। সেই আজকে আমরা 25,000 লোক নিয়ে এখানে আমরা জমায়েত করছি, সভা করছি। যত লোক ভিতরে আছেন তত লোক বাইরে আছেন। আমার সারা রাস্তা এখনো জাম পড়ে আছে, প্রায় 600 টোটো আমার এখনো রাস্তায় জামে ফেসে আছে। আপনাদেরকে বলে দিলাম 600 টোটো জামে ফেসে আছে। এই পশ্চিমবাংলায় কালচার আছে কি জামে আটকে দেওয়া হয় যাতে সবাই লোক না ঢুকতে পারে। এই চাপদানি বিধানসভায় মূলত 4-5টা এমন বিষয় আছে যেটা আপনারা দেখেছেন। আমাদের চাপদানি বিধানসভায় জনগণ, আমার চাপদানি বিধানসভায় মানুষ যেটা থেকে বঞ্চিত আছে। এই তৃণমূল সরকার যতগুলো পরিকল্পনা আছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে, কেন্দ্র সরকার তরফ থেকে সব কোটায় ধাপা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু 2 মের পর ভারতীয় জনতা পার্টি 210 সিট নিয়ে সরকার করবে। প্রত্যেকটা যোজনা লাগু হবে, এখানে প্রত্যেকটা যোজনা লাগু হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি গদিকে নিয়ে সরকার করবে না, পশ্চিম বাংলার মানুষের স্বার্থে সরকার করবে। পশ্চিম বাংলার জনগণের জন্য সরকার হবে, পশ্চিম বাংলার উন্নয়নের জন্য সরকার হবে, পশ্চিম বাংলার বিকাশ জন্য সরকার হবে। চাপদানি বিধানসভায় বাড়ি বাড়ি আমরা গিয়ে ডোর টু ডোর ক্যাম্পিং করেছি। আমরা দেখতে পেরেছি আমাদের কোনো ইস্যু তুলতে হবে না, ডাইরেক্ট সাধারণ মানুষ ইস্যু তুলে দিচ্ছেন। কারোর জল নেই, খাবার জল নেই, 1/2 কিলোমিটার 1.5 কিলোমিটার অব্দি হ্যান্ড পাইপ থেকে জল নিয়ে আসতে হচ্ছে। এটা কি পৌরসভা? এটাই কি মিউনিসিপ্যালিটি? এই দুর্নীতি সরকার তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলে ফেলে দিতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিয়ে এসে পশ্চিমবাংলায় উন্নয়ন করতে হবে আপনাদেরকে। চাপদানি বিধানসভায় 4টি মিল আছে, প্রায় একটাই মিলে 4 থেকে 5,000 শ্রমিক কাজ করেন, কিন্তু একটাও মিল 12 মাস চলে না, শুধু 3 মাস চলে, 9 মাস বন্ধ থাকে। কিন্তু আজকে আপনাদের কাছে এখানে দাঁড়িয়ে মাননীয় সিএম সাহেব সামনে আমি দাঁড়িয়ে কথা বলছি কি আপনাদের এই 4টে মিল চলবে আর 12 মাস চলবে, প্রত্যেকটা বাড়িতে রোজগার হবে। হসপিটাল নেই এখানে, একটা কলেজ নেই এখানে, ফেরিঘাট যেটা ছিল সেটাও বন্ধ আছে। নমামি গঙ্গার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকটা ঘাট ঠিক হবে এখানে, আর গঙ্গা সে নির্মল স্বচ্ছ থাকবে। আমাদের যাকে দেখার জন্য শোনার জন্য আপনারা উপস্থিত আছেন, আমি আমার বক্তব্যটাকে এখানে শেষ করব। যার জন্য আপনারা অপেক্ষা করছেন, এবার উনি বক্তব্য রাখবেন। আমি আরো একবার আপনাদের কাছে বলি, 2 হাত তুলবেন আর এরকম করবেন পদ্ম ফুল, এরকম করবেন পদ্ম ফুল। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दिलीप सिंह जी को
उनके मूल्यवान वक्तव्य रखने के लिए अब जो सुबह 9 बजे से बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था स्थापित करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महाराज योगी आदित्यनाथ जी। मैं महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे बीच अपने वक्तव्य को रखे। जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के सभापति श्री श्यामल घोष जी, चारदानी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय प्रत्याशी श्री दिलीप सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री विश्वास सावंत जी, अमर सिंह यादव जी, पवन प्रशोधन जी, अशोक कुमार सेठ जी, किशन साव जी, अमरीश सैयद जी, रिंकू बनर्जी, राजेश सिंह जी, पराग मित्रो जी, जितेंद्र कुमार शर्मा जी, दिनेश नारायण सिंह जी, सुब्रतो गोस्वामी जी, मंडल अध्यक्षगण श्री प्रवीर नियोगी जी, सुनील माली जी, अमिताभ घोष जी, महतो जी और भारी संख्या में चापदानी विधानसभा क्षेत्र से यहां पर उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र के उपस्थित भाइयों बहनों, मैं बंगाल की इस पावन धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये धरती भारत माता के उन महान सपूतों की धरती है जिन्होंने धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, समाज सुधार और जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में बंगाल को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करते हुए बंगाल को एक नई पहचान दी थी। रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक परंपरा हो, स्वामी विवेकानंद का वैश्विक मंच पर दार्शनिक अंदाज हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत की स्वाधीनता के लिए उद्घोष हो, या फिर भारत को, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाले उन महापुरुषों की धरती जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से भारत को दिया, और जिस गीत ने देश की स्वाधीनता का मंत्र बनकर के वंदे मातरम के माध्यम से भारत के जन जन में, भारत के युवाओं में एक नए ओज और तेज का संचार किया था, ऐसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस पावन धरती को, महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की इस धरती को, एक लंबी श्रृंखला है महापुरुषों की जिन्होंने बंगाल की धरती से उद्घोष किया था और पूरे भारत के अंदर वह आध्यात्मिक सामाजिक परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी थी। इस महान धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों समेत आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 10 वर्ष पूर्व
तृणमूल कांग्रेस बंगाल की धरती में कुछ नारे लेकर के आई थी। इन्होंने नारा दिया था मां, माटी और मानुष का। ममता दीदी ने कुछ नारे दिए थे बंगाल को, मां, मानुष और माटी का। आज क्या हुआ इनका? हम यही पूछने के लिए आए हैं ममता दीदी से, बंगाल की बहन और बेटियां, बंगाल की माताएं अपने आप को सहाय और असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं? ऐसी स्थिति क्यों बंगाल के अंदर पैदा हुई है? बंगाल की माटी जो वैज्ञानिक देने वाली है, आध्यात्मिक गुरुओं की लंबी श्रृंखला को पैदा करने वाली रही है, समाज सुधारकों की रही है, देश को एक नया संदेश देने वाली धरती रही है, आज वहां पे हताशा और निराशा क्यों है? जहां के नौजवानों ने देश की स्वाधीनता के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया हो, वहां का नौजवान रोजी और रोजगार के लिए पलायन करने के लिए क्यों मजबूर है? हताश और निराश क्यों बैठा हुआ है? 10 वर्षों का कार्यकाल दिया था बंगाल की धरती ने दीदी को, लेकिन ममता दीदी, आपकी सहानुभूति कहीं नहीं दिखती है यहां के युवाओं के प्रति, यहां की बहन बेटियों के प्रति, यहां के किसानों के प्रति, यहां के विकास के प्रति। हां, आपकी सहानुभूति दिखती है, वह सहानुभूति है टीएमसी के गुंडों के प्रति, जो बंगाल के प्रत्येक नौजवान का कार्य कर रहे हैं, किसानों के हक को छीनने का कार्य कर रहे हैं, बंगाल के अंदर अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। और जब भी भारत के अंदर विकास के एक नए संदेश को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन जब भी धरती पर उतारने की बात आती है, तो आपके द्वारा और टीएमसी के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। सीएए कानून के अंतर्गत आपने देखा होगा कि सीएए को लागू करने के लिए जब कानून बनाया गया, तो भाइयों बहनों, उस समय जो आंदोलन हुए थे, जो हिंसक वारदातें हुई थी, टीएमसी के लोग हिंसा को भड़काने वाले तत्वों का समर्थन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीए की हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर चस्पा किए और उन्होंने अगर कहीं सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसकी वसूली भी उन्हीं लोगों से करने का काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया है। लेकिन बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की भेंट करी है सरकार, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ममता दीदी को तो इन दंगाइयों में टीएमसी का वोट बैंक नजर आता है। हमने दंगाइयों में वोट बैंक नहीं देखा, हमने दंगाई को दंगाई माना और उसने जितनी संपत्ति का नुकसान किया उस संपत्ति की भरपाई उससे की, उसने नहीं की तो उसके पोस्टर लगाए और फिर उसकी संपत्ति को जब्त करके नीलाम करके उसकी भरपाई करने का काम भी किया। मां की बात करती है दीदी, लेकिन दुर्गा मां की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी। मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी और गौ हत्या का समर्थन करती है दीदी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता और अगर करेगा तो जेल के अंदर जाएगा।
दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। मां सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। लेकिन मां की बात करने वाली, अपने को बंगाल की बेटी कहने वाली ममता दीदी दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है और गौ हत्या का भी समर्थन करती है। माटी की बात करने वाली दीदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं देने देती है। बंगाल की माटी को भ्रष्टाचार का पर्याय बनाने का कार्य करती है दीदी। जितना पैसा मोदी जी विकास के लिए भेजते हैं, राज्य सरकार उस पैसे को या तो लगने नहीं देती है या टीएमसी के गुंडों में बंदर बांट कर देती है। जनता ठगी हुई महसूस करती है। यहां का मानुस अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और यही कारण है बंगाल के अंदर जहां कहीं भी हम जा रहे हैं, एक ही अभिवादन का शब्द निकल रहा है और वह शब्द है जय श्री राम का। बंगाल के अंदर जहां कहीं जा रहे हैं, एक ही शब्द है और वह शब्द है जय श्री राम का। भाइयों बहनों, बंगाल एक बार फिर से अंगड़ाई लेने के लिए तैयार है और मैं यही कहना चाहता हूं कि दीदी आपने तो 10 साल पहले परिवर्तन की बात की थी। ये परिवर्तन कहां है? ये परिवर्तन तो कहीं है ही नहीं, सब खौफ गई। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। आज बंगाल के अंदर मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, बंगाल के अंदर दीदी की सरकार 10 वर्षों से है। गरीब को मकान नहीं मिला, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ नहीं मिला, गरीब को निःशुल्क राशन की सुविधा नहीं मिली, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, किसान को किसान सम्मान निधि भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 4 वर्ष से, 4 वर्ष में 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का सुविधा का लाभ मिला है। 1,57,00,000 गरीबों को एलपीजी का निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध हुआ है। 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। और भाइयों बहनों, 14 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन की सुविधा नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत उपलब्ध हो रही है। 2,42,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने कहा था कश्मीर से आतंकवाद समाप्त करेंगे, आर्टिकल 370 समाप्त हो गई है। बंगाल का नौजवान, चापदानी का नौजवान आज जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद सकता है। ये अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको दे दिया है। कांग्रेस ने इससे वंचित किया था, लेकिन मोदी जी ने अधिकार आपको दे दिया है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी सभी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते थे,
मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जो मैं कह रहा था, भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। और मैं फिर कहने के लिए आया हूं, मात्र 24 दिन बचे हैं। 2 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो 2 मई तो टीएमसी के लोग सुन रहे होंगे, कान खोल करके सुन लेंगे। अब गुंडागर्दी बंद कर दें, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें, जनता को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने दें, अन्यथा 2 मई के बाद ढूंढ ढूंढ करके निकाले जाओगे, कानून के शिकंजे में डाले जाओगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि 2 मई के बाद सोनार बांग्ला के सपने को साकार करना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को साकार करना है। इसके लिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि दोसरा में बंगले होबे, एताचार सर्वोनाश, इबार बांग्ला सुदई हो, अनारोयन और विकास। आप सबसे यही अपील करने के लिए आए हैं। अब गुंडागर्दी समाप्त होगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, कानून का राज होगा, हर नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। बेटियों की यूजी से लेके पीजी तक की, केजी से लेके पीजी तक की पूरी शिक्षा मुफ्त में होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए फ्री में होगा। और बहन बेटियों की स्कूल के इर्द गिर्द मंडराने वाले जो गुंडे हैं, इनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पर कार्य करके इनसे कायदे से निपटने का काम भी करेगा। इन नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा बंगाल के अंदर ही होगी। बंगाल के नौजवानों में एक कुवत है कि वे बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के सपने को साकार कर सकते हैं। लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर यहां के नौजवानों के लिए, यहां की महिलाओं के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के गरीबों के लिए अपनी योजनाओं को लेकर के आई है। और उन योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपके पास आई है। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए आज आपके बीच में है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। रुझान में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत की ओर आगे दिखाया जा रहा है। भाइयों बहनों, अगले 5 चरणों के चुनाव के लिए आप सभी तैयार होइए। एक एक वोट कमल के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जाना चाहिए। और श्री दिलीप सिंह को चापदानी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपना प्रत्याशी बनाया है। वे युवा हैं, जुझारू हैं, कार्यकर्ताओं की टीम को साथ लेकर के कार्य करने का जज्बा रखते हैं। डबल इंजन की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो विकास कई गुना बढ़ेगा। और कई गुना विकास के लिए श्री दिलीप सिंह को इस विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए चर्चा करने के लिए आया हूं। श्री दिलीप सिंह को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे। इधर इधर इधर